આપી છે એવા ભીમરાવ બાબા સાહેબ આંબેડકરને મિત્રો યાદ કરીએ છીએ। આજે યુનિટી માર્ચની અંદર આપણી સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત ગુજરાતના લોક લાડલા મુખ્યમંત્રી માનનીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, એવી જ રીતે ત્રિપુરાના મુખ્યમંત્રી શ્રી માણિક શાહજી, એવી જ રીતે કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી અનુપ્રિયા પટેલજી, શ્રી નીમુબેન બામણિયાજી, આખા દેશભરની અંદર યાત્રાનું જે કોઓર્ડિનેશન સંચાલન કરતા એવા જ શ્રી સુનિલ બંસલજી રાષ્ટ્રીય મહામંત્રીજી, એવી જ રીતે ગુજરાતમાં આ યાત્રાનું કોઓર્ડિનેશન કરતા મારી ટીમ શ્રી રત્નાકરજી, રાજ્ય સરકારના મંત્રી શ્રી જીતુભાઈ, શ્રી રમણભાઈ, શ્રી કમલેશભાઈ, આપણા લોકપ્રિય સાંસદ શ્રી મિતેશભાઈ દેવુસિંહજી, સૌ ધારાસભ્ય મિત્રો, શ્રદ્ધેય મંચ અને દેશભરમાંથી આવેલા તમામ યુવાનો, ગુજરાતના તમામ યુવાનોનું આજના દિવસે સ્વાગત કરું છું। સરદાર સાહેબની 150મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે સમગ્ર દેશભરમાં આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી માનનીય નરેન્દ્ર મોદીજીના માર્ગદર્શન હેઠળ આ યુનિટી માર્ચ સરદાર @150 ના નામે દેશના તમામે તમામ જિલ્લાની અંદર ખૂબ સફળતાપૂર્વક આયોજન થયું। ગુજરાતની અંદર પણ સવિશેષ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી માનનીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના અધ્યક્ષતામાં 182 વિધાનસભાની અંદર આખું આયોજન થયું। અને ત્યારે મિત્રો આપણને સૌને ગૌરવ થાય કે દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી માનનીય મોદી સાહેબે જે રીતે 140 કરોડ ભારતીયોનું સન્માન માત્ર ભારતમાં જ નહીં પણ સમગ્ર વિશ્વની અંદર આપણું સન્માન વધારવાનું કામ કર્યું છે। અને આ વર્ષે વિશેષ રીતે 150મી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જયંતિ, એવી જ રીતે ભગવાન બિરસા મુંડાની 150મી જયંતિ, અને હમણાં જ્યારે આપણે સંપૂર્ણ વંદે માતરમનું ગીતનું ગુંજન કર્યું, એ 150મી વંદે માતરમ ગીતનું પણ 150 વર્ષ જ્યારે પરિપૂર્ણ થયા છે, ત્યારે આ ત્રણેય સંગમ આપણા સૌના માટે એક ગર્વની બાબત છે। સરદાર સાહેબનું નામ પડતાની સાથે જ દેશના યુવાનોમાં, દેશની 140 કરોડ જનતાના રોગોમાં ઉર્જા સ્થાપિત થાય તેવું વ્યક્તિત્વ। દેશ જ્યારે આઝાદ થયો અને ત્યારે 565 રજવાડા એક કરી અખંડ ભારતનું જેમણે સપનું જોયું હતું, અને આપણને સૌને મિત્રો ગૌરવ થાય કે 562 રજવાડા નું જે વિલીનીકરણ કર્યું, અને એક લોખંડી પુરુષ તરીકે, એક સરદાર તરીકે મિત્રો જેમને બિરુદ મળ્યું છે, એવા સરદાર સાહેબને આ યુનિટી માર્ચની અંદર આપણે સૌ જોડાયા છીએ। દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી માનનીય મોદી સાહેબનું સપનું છે એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત, અને આત્મનિર્ભર ભારતના આ સપનાને મજબૂત કરવાની અંદર જ્યારે આખો દેશ લાગી પડ્યો છે, ત્યારે આ યુનિટી માર્ચ યાત્રાની અંદર દેશભરના યુવાનો જ્યારે જોડાયા છે, ત્યારે સવિશેષ વાત કરતા હું ચોક્કસ કહીશ કે દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી માનનીય મોદીજીનો જે સંકલ્પ છે આત્મનિર્ભર ભારત, આવો સૌ યુવાનો આ યુનિટી માર્ચમાં જે જોડાયા છે, આપણે એવો સંકલ્પ લઈએ કે 2047નું જે વિકસિત ભારતનું જે સપનું છે, જે સપનું સરદાર સાહેબે જોયું હતું, એ તમામે તમામ સપનાઓ
એ દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી માનનીય મોદી સાહેબ એમના રાહ ઉપર ચાલીને સપના જ્યારે પૂરા કરી રહ્યા છે ત્યારે આપણે સૌ લોકો જીવનની અંદર સંકલ્પ લઈએ કે જીવન જરૂરિયાતી તમામે તમામ વસ્તુઓ હું સ્વદેશી વસ્તુ વાપરીશ, મારા પરિવારમાં, મારા સ્વજનમાં એ ભારતના કારીગરના બનાવેલી પરસેવાની સુગંધની એ વસ્તુ, આ ભારતની માટીની જે સુગંધની વસ્તુ હોય એ વસ્તુ વાપરીશ, મેડ ઇન ઇન્ડિયા વસ્તુ વાપરીશ અને આત્મનિર્ભર ભારત માટે આપણે સૌ મિત્રો એ સંકલ્પ લઈએ અને આ યુનિટી માર્ચ એ કરમસદથી લઈ અને કેવડિયા સુધી જે જોડાવાની છે ત્યારે દેશભરમાંથી યુવાનો, અન્ય રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ, કેન્દ્રીય મંત્રીઓ તમામ લોકો જોડાવાના ત્યારે દેશભરની અંદર આત્મનિર્ભર ભારતનો સંકલ્પ લઈ આપણે સૌ છૂટા પડીએ. એ જ અભ્યર્થના. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ. माननीय मंत्री श्री, आपना उत्साहपूर्ण शब्दों माटे अमे पण आपनो आभार मानीए छीए। भारत की पूर्वी सीमाओं से लेकर गुजरात की इस पवित्र धरती तक एकता की यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि देश का हर कोना, हर राज्य सरदार साहब के सपने को आगे बढ़ाने वाला एक परिवार है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर माणिक साहा। मैं अत्यंत आदर के साथ विनम्र निवेदन करती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने प्रेरक विचारों से हम सभी को प्रोत्साहित करें। Namaskar. On the occasion of the 150th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, जो आज के ये कार्यक्रम सरदार यूनिटी मार्च पद यात्रा, इसको सामने रखते हुए आज मंच पर उपस्थित हमारे गुजरात के लोकप्रिय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र पटेल जी, श्री नीमूबेन बाम बनिया जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, श्री सुनील बंसल जी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी, श्री जगदीश विश्वकर्मा स्टेट प्रेसिडेंट गुजरात, श्री जेटू भगवानी कैबिनेट मिनिस्टर गुजरात, श्री रत्नाकर जी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन गुजरात, एंड मंच पर अदर्स मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलएस एंड ऑफिसर्स, और मेरे सामने गुजरात से शुरू करके बाहर से जो भी भाई और बहनें आए हैं और ये पदयात्रा में भाग लेने के लिए आए हैं, और मीडिया बंधु सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा कहना चाहता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी को मैं अपनी और त्रिपुरा राज्य के जनता के ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन देता हूं। आज के इस सरदार यूनिटी मार्च पदयात्रा कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैं अत्यंत आनंदित और गौरवान्वित हूं। आज हम केवल पदयात्रा में भाग नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम एकता, साहस और राष्ट्र निर्माण के महान आदर्शों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भारत की एकता के शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस हमें देश के संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में एकता के जो महत्व की याद दिलाता है। इस वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के
150वीं जयंती होने के कारण राष्ट्रीय एकता दिवस का विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती के अवसर पर माय भारत के माध्यम से भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा सरदार 150 यूनिटी मार्च उत्सव के हिस्से के रूप में ये पदयात्रा आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र भारत की एकता के संस्थापक सरदार पटेल के योगदान के याद करना और देश के युवा पीढ़ियों में एकता की भावना, देशभक्ति और जिम्मेदारी को जगाना है। इस पहल की मूल भावना एक भारत आत्मनिर्भर भारत है। भारत के लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने असीम दूरदर्शिता, दृढ़ नेतृत्व और देशभक्ति से हमारे स्वतंत्र भारत की नींव रखी थी। हमारे राज्य त्रिपुरा में भी विभिन्न क्षेत्रों में सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाने के लिए वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के पहल पर इस सरदार 150 यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग सहित विभिन्न जो विभागों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद देश की एकता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकजुट, मजबूत और समृद्ध भारत का सपना देखा था। वह दृढ़ता से मानते थे कि भारत की शक्ति भारत के विविधता में छुपी है। भारत के स्वतंत्रता के समय विशेष रूप से 1947 से 1949 के दौरान सरदार पटेल ने लगभग 560 से अधिक रियासतों को भारत में शामिल किया है। हम सब जानते हैं ये महान कार्य सरदार पटेल के दृढ़ मानसिकता और साहसी कदम से कारण ये संभव हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की एकता और अखंडता के प्रतीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की अखंडता और एकता की रक्षा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। उन्होंने भारत के प्रशासनिक ढांचे और राष्ट्रीय एकता के निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2014 से सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की घोषणा की है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा में सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से 2014 में रन फॉर यूनिटी की शुरुआत की गई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के 140वीं जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सरदार पटेल के एकजुट भारत के सपने को साकार करने का वादा करता है। विविधता में एकता के इस भावना के साथ माननीय प्रधानमंत्री ने देश के प्रत्येक धर्म, भाषा, संस्कृति और परंपरा को पुनर्जीवित करने के लक्ष्य रखा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में भारत सरकार ने 2018 में गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर उनकी एक पूर्णकाय प्रतिमा स्थापित की। इसे दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है, हम सब जानते हैं। देश को और मजबूत बनाने, समृद्ध भारत का निर्माण करने और सभी को देशभक्ति के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से इस वर्ष सरदार 150 यूनिटी मार्च मनाया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती मनाने के लिए 6 अक्टूबर 2025 को युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री आदरणीय डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी माय भारत पोर्टल के माध्यम से इस डिजिटल प्रचार अभियान सरदार 150 यूनिट मार्च की शुरुआत की है। इस चरण में सोशल मीडिया, रील कंपटीशन,
निबंध लेखन कंपटीशन और सरदार 150 यंग लीडर्स प्रोग्राम का शामिल किया है। देश के प्रत्येक राज्य के जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर के विभिन्न चरणों में कोई प्रकार के कार्यक्रम के पहल की गई है। सरदार 150 यूनिटी मार्च पूरे देश में विभिन्न चरणों में आयोजित हो रहा है। जिला स्तरीय पदयात्रा 31 अक्टूबर से 25 नवंबर 2025 तक आयोजित की गई है। त्रिपुरा में भी बहुत उत्साह के साथ ये मनाया गया है। पदयात्रा से पहले स्थानीय लोगों में जागरूकता और उत्साह पैदा करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसके साथ ही युवा पीढ़ियों में नशा मुक्त भारत की शपथ, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में स्वदेशी मेला, योगा और हेल्थ कैंप, स्वच्छता अभियान की पहल गई है। पदयात्रा के समय सरदार पटेल की मूर्ति या तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करना, आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेना और उस सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित अन्य जो गतिविधियों में भाग लेना शामिल है। राष्ट्रीय स्तर की पदयात्रा आज यानी 26 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक आयोजित होगी। इस कार्यक्रम में हिस्से के रूप में गुजरात के करमसद के कबरिया के स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक 152 किलोमीटर जो लंबी पदयात्रा आयोजित की जा रही है। हर शाम सरदार गाथा सूत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें विशिष्ट विद्वान सरदार पटेल के जीवन और उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। गुजरात के लोगों को गरम जसीबर आतिथ्य, सौहार्द और प्रगतिशील रवैया ने मुझे गहराई से प्रेरित किया है। एक बार फिर मैं गुजरात के सभी निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। अंत में गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मंडाविया जी और सभी केंद्रीय और आधिकारिक और राज्य के आधिकारिक यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय सरदार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके प्रेरक शब्दों और गरिमामय उपस्थिति के लिए आपका भी हार्दिक धन्यवाद। જેઓની એકતા પ્રત્યેની અડગ નિષ્ઠા હોય, નિર્ણયોમાં સ્પષ્ટતા હોય, વિકાસ মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি। লংতরাই একটু চেষ্টাতেই দুল